সন্ধ্যা ছটায় টপ নিউজ এট 6 নামে অনস্বর রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং শুরুতেই আকাঙ্ক্ষা হত্যা রহস্যের দিকে নজর দিতে হবে, কারণ সেই তদন্তে এই মুহূর্তে চাঞ্চল্যকর মোড়। স্ত্রীর মতোই খুন করেছে মা বাবাকেও, তাদের দেহ পোতা রয়েছে পৈতৃক বাড়ি বাগানে। জেরায় স্বীকার করল অভিযুক্ত উদয়ন দাস। আপনি নিশ্চয়ই জানেন। জানি 89 বাংলা ছবি 89 বাবা মাকে খুনের কথা স্বীকার করে শাশ্বত। ভয় লাগে। বাস্তব কল্পনার থেকেও ভয়ঙ্কর, বাবা মাকে মেরে পুঁতে ফেলার কথা জানালো উদয়ন। স্ত্রী আকাঙ্ক্ষাকে খুন করে ঘরেই পুঁতে ফেলে উদয়ন, তার উপর মার্বেলের বেদি বাঁধিয়ে দেয়। সেই রহস্য ফাঁসের সূত্র ধরেই ফাঁস হলো আরো এক রহস্য। 2010 সালে নিজের বাবা মাকে গলা টিপে হত্যার কথা স্বীকার করল উদয়ন। রায়পুরে পৈতৃক ভিটে বাবা মাকে খুনের পর দেহ পুঁতে দিয়েছে বাগানে। জেরায় পুলিশকে জানিয়েছেন উদয়ন। अपने बयान में उसने ये भी स्वीकारा है कि अपने माँ बाप को, जो कि 2010 के लगभग रायपुर में थे, रायपुर में उनकी भी हत्या करके उन्होंने रायपुर में ही एक घर में उनको दफन किया है। কোন সূত্রে এত বড় স্বীকারোক্তি? সেই ধারাবাহিকতাও কম চাঞ্চল্যকর নয়। ট্রানজিট রিমান্ডে উদয়নকে পশ্চিমবঙ্গে আনার কথা, তাই উদয়নের বাবা মায়ের খোঁজ শুরু করে পুলিশ। উদয়ন পুলিশকে জানায় তার বাবা মারা গেছেন, মা থাকেন আমেরিকায়, কিন্তু মায়ের ঠিকানা বা ফোন নাম্বার কোনোটাই দিতে পারেনি আকাঙ্ক্ষা হত্যায় অভিযুক্ত। উদয়ন দাবি করে সে একাধিকবার মায়ের কাছে গিয়ে থেকেছে, কিন্তু পুলিশ তার পাসপোর্টে বিদেশ যাত্রার উল্লেখ পায়নি। আর এরপর চেপে ধরতেই খুনের কথা স্বীকার করে উদয়ন। কিন্তু উদয়নের এই বয়ানেও রয়েছে বিভ্রান্তি, কারণ একবার সে বলছে বাবা মার দেহ পোতা রয়েছে বাড়ির বাগানে, একবার বলছে পার্কে পোতা রয়েছে দেহ। সত্যের গোড়ায় পৌঁছতে উদয়নকে নিয়ে রায়পুর যাচ্ছে ভোপাল পুলিশের একটি দল। বাঁকুড়া থানা তদন্তকারী অফিসাররাও সঙ্গে যাচ্ছেন, কারণ উদয়নকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না তদন্তকারীরা। পুলিশের সন্দেহ উদয়ন মানসিক বিকারগ্রস্ত, তাই তার দেওয়া তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আকাঙ্ক্ষার পর ভোপালের এক তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় উদয়নের। সেই তরুণীও পুলিশকে জানিয়েছেন উদয়নের বাবা বা মাকে তিনি কখনো দেখেননি। উদয়নের সঙ্গে আর কোনো তরুণীর পরিচয় হয়েছে কিনা, আর কাউকে সে খুন করেছে কিনা, তাও জানার চেষ্টা চলছে। ট্রানজিট রিমান্ডে থাকলেও উদয়নকে এখনই রাজ্যে আনা হচ্ছে না। রবিবার সকালে তাকে নিয়ে রায়পুরে পৌঁছবে পুলিশ। ঘটনা প্রবাহ কোন দিকে এগোয় তা খতিয়ে দেখার পরে উদয়নকে রাজ্যে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ট্রানজিট রিমান্ডে উদয়নকে এ রাজ্যে আনার প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিল বাঁকুড়া পুলিশ, কিন্তু সবটাই এলোমেলো করে দিল উদয়নের এই স্বীকারোক্তি। আর এই মুহূর্তে ভোপাল পুলিশের সঙ্গে বাঁকুড়া পুলিশের বিশেষ দল তারা রওনা হয়েছেন রায়পুরে, সেই বাগান বাড়ির উদ্দেশ্যে যেখানে নিজের মা বাবাকে খুন করে পুঁতে রাখার কথা কবুল করেছে উদয়ন। ওই ঘটনার তদন্ত শেষ হবার পরই উদয়নকে এ রাজ্যে আনার বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করা হবে, সেরকমটাই জানানো হচ্ছে বাঁকুড়া পুলিশের তরফে। 24 ঘন্টার জন্য ক্যামেরায় অমিত দাসের সঙ্গে হীরক মুখার্জি এবং সন্দীপ সরকার, বাঁকুড়া। এই মুহূর্তে আপনাদের নিয়ে যাওয়া ভোপালে संदीप রয়েছেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি। संदीप जी, अब तक जो जो इन्फॉर्मेशन मिले हैं पुलिस को, उसके मुद्दे पर पुलिस क्या बता रहा है? क्या वो सच है? उदयन क्या सच बता रहे हैं? उदयन जो भी कुछ कह रहा है उस पर पुलिस को भरोसा नहीं है, और पुलिस ये चाहती है कि वो जो कुछ भी कह रहा है उसकी पहले जांच कर ली जाए, इंक्वायरी कर ली जाए, और उसके बाद में उसकी बात पर भरोसा किया जाए। उदयन ने पहले कहा था कि आकांक्षा कहीं नहीं है मेरे पास, मैं उसको आकांक्षा को जानता नहीं हूँ। थोड़ी सख्ती बरती गई तो उदयन ने यह बता दिया कि उसने आकांक्षा का मर्डर कर दिया है। उसके बाद जब इस हत्या की वजह के बारे में पुलिस ने पूछताछ शुरू की, और कल रात पूरी रात भर पूछताछ करती रही पुलिस, तब जाकर ये पता लगाया गया कि आखिर उदयन के माँ बाप क्यों हैं, और क्या कहीं किसी तरह की कोई अनबन तो नहीं थी दोनों के बीच में। तो बातचीत के बाद में उदयन ने ये कहा कि उसने अपने माता पिता को, पेरेंट्स को मार डाला है, उसकी हत्या कर दी है। हत्या रायपुर में हुई है, और रायपुर में हत्या करने के बाद में दोनों शवों को उसने उसी जगह पर गड़ा दिया है। उदयन से जो भोपाल पुलिस पूछताछ कर रही है उसमें कई हैरत अंगेज चीज़ें सामने आ रही हैं। मसलन वो ये कहता है कि वो कई बार अमेरिका गया है, लेकिन जब दस्तावेज खंगाले गए तो उसने कहा, तो उसमें इस तरह की किसी विदेश यात्रा का जिक्र तक नहीं है। उदयन कभी पुलिस पूछताछ में यह कहता है
कि वो IITian है, IIT से पास आउट है, लेकिन जब दस्तावेज खंगाले गए तो पता लगा कि वो 12वीं पास है। पुलिस पूछताछ करती जाती है, दस्तावेजों के साथ में उसके सबूतों को मिलान करती है, तब जाकर हकीकत सामने आती है। लेकिन इस बार उसने जो बात कही है कि उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी है, रायपुर में शवों को दफन करके रखा है, हाँ। तो पुलिस इस बात की तस्दीक करना चाहती है क्या वाकई उदयन ठीक कह रहा है या कोई और बात है। उदयन इस सारी चीजों के जरिए केस को भटकाने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि अभी तक मसला केवल आकांक्षा के मर्डर मिस्ट्री को जानना था कि आखिर उसने आकांक्षा का मर्डर क्यों किया है। लेकिन उदयन के इस बयान के बाद कि उसने अपने माँ बाप का मर्डर कर दिया है, अब केस दूसरी दिशा में मुड़ गया है। क्या उदयन हत्या करने वाला कोई साइकिक, कोई इस तरह का मुजरिम है, कोई आरोपी है? জি ধন্যবাদ সন্দীপ জি। এবার আপনাদের শোনাবো পুলিশ সুপার তাঁর কি বক্তব্য। भोपाल साउथ के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा साहब मेरे साथ में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आकांक्षा मर्डर केस के बाद में उदयन तरह तरह की बातें कर रहा है, क्या क्या कह रहा है वो? क्या उसने अपने माँ बाप का भी मर्डर कर दिया है? ऐसा उसने पुलिस पूछताछ में जरूर बताया है कि उसने अपने पेरेंट्स को मारा है रायपुर में, जहां उनकी मदर के नाम जो प्रॉपर्टी थी उस परिसर में, वहां पे उसने उनको पेरेंट्स को मार करके वहां दफनाया, ऐसा इसका कहना है। क्या पूछताछ में ये कुछ निकलकर सामने आया है जिसके माता पिता कहाँ रहते थे, क्या करते थे, और उसने आकांक्षा का मर्डर क्यों किया? जैसा कि इसने बताया, इसके जो पेरेंट्स हैं वो रिटायर्ड BHL अधिकारी थे, उनकी मदर सांख्यिकी विभाग में कार्यरत थी। फिर एक अहम बात और है कि ये इसके बयान जो हैं ये बड़े उलझे हुए दे रहा है। ये ऐसा लगता है कि ये भटकाने की कोशिश भी कर रहा है केस को। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, और इसलिए ये अति आवश्यक है कि सारे जो फैक्ट्स हैं वो फिजिकली वेरीफाई हों, और जो वही अभी पुलिस करेगी। आकांक्षा मर्डर मिस्ट्री के बाद में 2 और मर्डर का खुलासा हुआ है। हालांकि पुलिस उदयन की बात का भरोसा नहीं कर रही है। इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस रायपुर पहुंचेगी। कैमरामैन लवनीत के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। আর এবার আপনাদের নিয়ে যাবো রায়পুরে। ছত্তিশগড়ের রায়পুরের এই বাড়িতেই থাকতেন উদয়ন দাসের মা বাবা, আর এই বাড়ির বাগানে নাকি পোতা রয়েছে তাদের দেহ, এমনই পুলিশের কাছে দাবি করেছে উদয়ন। পুলিশের আগেই সেই বাড়িতে পৌঁছে গেছে 24 ঘন্টা। এখন বাড়িতে থাকেন হরিশ কুমার পান্ডে। 2014 সালে এই বাড়ি কিনেছিলেন তিনি। মা ইন্দ্রাণী দাসের মৃত্যুর পর বাড়ির মালিক হন উদয়ন। পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দেন সুরেশ দুয়াকে, তার থেকেই বাড়ি কেনেন হরিশ পান্ডে। তো এই বাগানে আজ পর্যন্ত কোনো ঘোরাঘুরি করেননি তিনি, এমনকি কিছুই জানতেন না। उदयन दास जिस मकान में रहता था और जिस जगह पर उसने वारदात किया था, उस मकान पर हम मौजूद हैं यहाँ पे, और पांडे जी इस मकान के अभी फिलहाल वो इस मकान में रह रहे हैं, और उन्होंने जिससे मकान लिया था हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। आपने ये मकान किससे लिया था पांडे जी? मैंने मकान पावर होल्डर, जिसने उदयन दास ने पावर ऑफ होल्डर दिया था जिसको, मैं उनसे खरीदा था। जब आप इस मकान में, तो किस तरीके से मकान का कंस्ट्रक्शन था, किस हालत में आप इसको लिए थे? मकान खंडहर टाइप था, मैं रिनोवेट करवाया हूँ, खाली रंगाई पोताई करवाया हूँ, और जैसे देख रहे हो सामने से लेकर यहाँ तक, और ये सामने वाले पोर्च को बस मैंने बढ़ाया हूँ। नहीं, मेरे को अभी सुबह ही पता चला इस मैटर के बारे में, इससे पहले कोई जानकारी नहीं था। सुबह क्या बताया गया कि पेपर में ऐसा ऐसा आया है, उसने अपने मिसेज को मर्डर वर्डर कर दिया है, बस उतनी ही जानकारी है। आस पड़ोस में जब मैं जब मकान को खरीदा तो उस समय पता चला कि उसकी माँ हॉस्पिटलाइज थी, उस समय उसके हॉस्पिटलाइज में मृत्यु हुई थी, बस यही जानकारी था। तो इसके बारे में इनको सिर्फ इतनी जानकारी थी कि उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी, अस्पताल में बीमार थी वो, और उसके बाद आज भोपाल पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है। जिस जगह पे हम खड़े हैं यही वो गार्डन बताया जा रहा है कि इसी जगह पर जो है उदयन ने अपनी माता पिता की हत्या करने के बाद उनको यहीं पे दफनाया जी। और रायपुर पहुंचने के बाद रायपुर पुलिस की मौजूदगी में और उदयन की मौजूदगी में यहाँ पे खुदाई होगी, जैसा कि रायपुर के IG प्रदीप गुप्ता ने भी कहा है कि फॉरेंसिक जांच की जाएगी लाश के जो अंश होंगे उसको निकालने के बाद, और उसके बाद फिर आगे की इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन राकेश के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर।